Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Dear myself Professor Anil Telinge, our today's session related with SY BMS, SY BBI and BAP student subject FC NSS. Our today's topic is microfinance. My dear student, in economic development of nation, not only the nation but also the whole world, the financial system plays a vital role. A microfinance is one of the important institutions from the financial sector. In introductory sessions of microfinance, especially why the microfinance introduce, इसका introduction क्यों हुआ, what is actually speciality of microfinance, what are the functions as well as benefit of microfinance is our today's sessions part. Dear, under introductions clearly mention that microfinance is also called as a microcredit. इसको microcredit बोला जाता है. स्पेशली ये क्यों बनाया गया? सी कमर्शियल बैंक्स आर देयर्स, नेशनलाइज बैंक्स आर देयर्स, सो मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर देयर्स, बट सभी बैंकिंग सेक्टर का, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन एम, मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है. बट इस उनके एम और ऑब्जेक्ट के रिगार्ड्स में हम देखेंगे देर आर सम लो अर्नर ग्रुप्स आर आल्सो देयर्स, अनएम्प्लॉयड पीपल्स आर देयर्स. ये टोटली इस फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सक्लूड हो जा रहे थे. मतलब सच फाइनेंशियल सिस्टम लाइक अ कमर्शियल बैंक as well as a private sector banks not easily grant the loans and advances as well as other banking services to a such low income as well as unemployed people. तो उन लोगों का ग्रोथ कैसे हो जाएगा, इन लोगों की डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, इसलिए ये माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट एग्जिस्ट में आ गई. ये माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट सिस्टम जो है डियर, ये सिस्टम लो अर्नर पीपल एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल हु वांट टू स्टार्ट और सेट अप देयर ओन बिजनेस, by setting a new business, who want to create the employment opportunities, who want to develop their entrepreneurship skill. तो ये complicated loan process avoid करके such people prefer to the micro finance or micro credit. A micro credit a डिवाइस है, ये एक सिस्टम है जो लो अर्नर को एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल को इजीली लोन अवेलेबल किया जाता है. वही इंट्रोडक्शंस में क्लियर किया है. It not grant the loans, it's also habitate to the low earner as well as unemployed peoples to saving, to maintain the loans as well as insurance, money transfer, other banking services properly provide करने का काम ये माइक्रो फाइनेंस करते हैं. तो लो अर्नर्स एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल को फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन इस विश्व में काम करती है, सच इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज अ माइक्रो फाइनेंस. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस टू रिमूव द पॉवर्टी एंड इंक्लूड the low earner as well as unemployed people in a systems. Are you getting that? What is the background? Is any background for the microfinance? Microfinance का special जो background है to targeting unemployed and low income individual. Those peoples are low earner as well as unemployed in natures. ऐसे लोगों को बैंकिंग सर्विस से दूर रखा गया था. माय डियर स्टूडेंट, ऐसे लोगों को माइक्रो फाइनेंस अलाउ करती है सेफली take the responsible or reasonable small business loans in a manner that consist with the ethical lending practices. इनको lending practice से दूर रखा गया था. loans and advances इनको नहीं दिए जाए थे. मैंने introductions में भी clear किया. So a background of microfinance to provide the financial assistance, provide the financial support इजी इथिकल वे से. आई रिपीट अगेन, माइक्रो फाइनेंस भी सेम प्रोसेस फॉलो करती है जो अदर बैंकिंग सेक्टर्स फॉलो करते हैं वाइल ग्रांटिंग द लोन्स. सम जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अदर बैंकिंग सेक्टर्स के, ये टोटली डिमोलिश किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं अंडर द माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट्स. होप सो इंट्रोडक्शन एज वेल एज बैकग्राउंड वेरी वेल अंडरस्टूड टू यू ऑल पीपल. माइक्रो फाइनेंस इज अ माइक्रो क्रेडिट helpful to unemployed people as well as low earner people.
low earner as well as the unemployed peoples without any collateral securities can easily obtain the loan. It's also habited to the saving as well as other facilities, credit facility, bank transfer facility provided by the microfinance. Sir, a such supporting system for the villages as well as rural peoples is any history for the microfinance? So microfinance की कुछ हिस्ट्री है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट, इन इरिश वहाँ पे जो जोनाथन स्विफ्ट करके एक इकोनॉमिस्ट होके गए, उन्होंने टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द इरिश सिटीजन्स, इरिश की जो सिटीजन्स है, पुअर पीपल है, उनकी पोजीशन इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट्स का सबसे पहले वहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ. अब मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस का यदि जिक्र करेंगे तो इट्स डेवलप इन 1970. 1970 में माइक्रो फाइनेंस और अच्छी तरह ग्रोन अप होते गया. माइक्रो फाइनेंस में एक हिस्टोरिकल मोमेंट जो हम देखेंगे, 1976 में मोहम्मद यूनुस फ्रॉम बांग्लादेश स्टार्टेड अ ग्रामीण बैंक, a banking sector of banking transaction, banking facility for the ग्रामीण people, village peoples. उससे जो टोटली एक्सक्लूड थे, टोटली अवे थे बैंकिंग फैसिलिटी से, उनको भी एक ग्रामीण बैंक के द्वारा बांग्लादेश में स्टार्ट की गई. और इनके इस फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज इट्स हेल्प्स टू प्रमोट द पुअर पीपल को प्रमोट करने के लिए, उनके लाइफ को इम्प्रूव करने का काम माइक्रो फाइनेंस करते हैं. इसलिए 2006 में जो पीस नोबेल प्राइज इन पीस, इससे इनको सम्मानित किया गया रिगार्डिंग द फंक्शनिंग थ्रू द ग्रामीण बैंक. ये हिस्टोरिकल पार्ट है रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस हिस्ट्री, इट स्टार्टेड फ्रॉम द इरिश. I already explained. Modern microfinance actually started in 1970, and 1976 the Grameen Bank, it is one of the importance we called as outcome from the microfinance. So microfinance history I express in front of you. Now my dear student, is any benefit of the microfinance? Introduction is the microcredit. If a background, it provides the loans and advances and banking services to the low earner as well as unemployed people. Sir, is any benefit or advantages of microfinance? The first benefit, inclusion of poor into the financial system. Sir, जो other financial system नहीं कर पा रही थी, because of profit maximization, the one of the important object of such financial institution, इससे जो लो अर्नर एज वेल एज विलेजर्स अवे थे फाइनेंशियल सिस्टम से, उनको फाइनेंशियल सिस्टम में लाने का काम, इंक्लूड करने का काम माइक्रो फाइनेंस ने किया. सो इंक्लूजिंग ऑफ द पुअर इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, ये पहला बेनिफिशियल पार्ट, ये पहला काम हमारे माइक्रो फाइनेंस ने किया. अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अप, दोज people or individual want to start their own business, a small unit, the microfinance support them, provide them a startup capital. So startup opportunities, employment opportunities, entrepreneurship development, skill based development from the village and rural areas, it's possible because of the microfinance. The benefit of the microfinance, lower interest rates compared to the local money lenders. No doubts, before the microfinance, the villagers were totally dependent on the money lenders. Money lender totally exploit to the small farmers as well as the lower earners and unemployed peoples. So comparative, the rate of interest of microfinance is lower than a money lenders. It's one of the important benefits, as well as no need to provide any securities. Also, it provide the self-employment. If anybody have the capacity to start or set up a new business, microfinance is ready to provide the finance without any complicated or need not to follow the any complicated process. तो ये आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उसमें एक बेनिफिट में आप लिख सकते हो. अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, माइक्रोफाइनेंस सपोर्ट टू सच विलेजर्स ट्राई टू ऑब्टेन द हायर एजुकेशंस, उनको भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने का काम माइक्रोफाइनेंस करती है. So dear, in current slides, inclusion of the poor people, opportunity for startup of new business, providing the loans at a lower rate of interest, whatever interest provided by the money lenders, उनसे lower interest में loan available करके देना. Topmost important benefits, it provide the self employment opportunities.
The entrepreneurs or skilled person can set up their own business with the support of microfinance. It also provide the support for the education opportunities. So many seminars also organized by the microfinance for the awareness toward the financial systems which run functions in our nations. Sir, is entrepreneurs who create the successful business the important benefit of microfinance. The small money lender, small landlords as well as the unemployed people easily obtain the loan. They set up their business. So such a small business, small cottage industry provide the employment opportunities, and you know that the employment opportunities helps for the economic growth as well as the development of the nations. It's improve the standard of living of the communities who live at a rural or it may be a village areas. A most important benefits of microfinance, you all of you aware, the Mahila Bachat Gat, empowering the women, महिला को एक सक्षमीकरण करने का काम स्मॉल सेविंग के मदद से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें हम महिला बचत गट का बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं. उसमें प्रेसिडेंट ही बिलो पॉवर्टी लाइन का होता है. इन लोगों का ग्रुप ऑफ द जो फीमेल है उनको एक स्ट्रेंथ, ताकत, फिनेंशियल सपोर्ट देने का काम माइक्रो फाइनेंस करती है. एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है माइक्रो फाइनेंस. आज कितने विलेज के महिलाएं दे स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस विच प्रोवाइड देम अ रेगुलर इनकम विच हेल्प्स टू सपोर्ट द फैमिली. वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं. ये हमने लोकल लेवल पे देखा. नाउ सम सर्वे फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक सजेस्ट दैट वन बेनिफिट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस मोर देन 500 मिलियन पीपल हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पूरे विश्व के वर्ल्ड बैंक बता रही है कि 500 से भी ज़्यादा 500 मिलियंस peoples, more than that peoples from the village and rural areas are benefited from the directly or indirectly benefited from the microfinance. तो ये काफ़ी benefits हम microfinance से related देख सकते हो. इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFS also बोल रही है कि more than 130 million people have directly benefit from the microfinance operation. माइक्रो फाइनेंस का जो ऑपरेशन चलता है, सिस्टम चलती है, लोन्स ग्रांटिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ द फंड, एजुकेशन लोन एटसेट्रा एज वेल एज स्टार्टअप लोन, इससे 130 मिलियन पीपल डायरेक्टली ऑपरेशनल उनको क्या मिला है सर, सपोर्ट मिला है, बेनिफिट मिला है. ये काफ़ी बेनिफिट के लिए है. दिस ऑपरेशन आर ओनली अवेलेबल अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ 3 बिलियन पीपल हु क्वालिफाई एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पुअर्स. जो वर्ल्ड पुअर्स में क्वालिफाई हुए थे उनमें से 3 मिलियन 20% लोगों को इसका एक्चुअल बेनिफिट्स हो चुका है. सो डियर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस लेके आई थी. अनएम्प्लॉयड पीपल एज वेल एज द लो अर्नर पीपल्स को इजीली बैंकिंग सेक्टर से एक्सक्लूड रखा था, बाहर रखा था. उनको इंक्लूड करने का काम हमारे माइक्रो फाइनेंस ने किया और एक ड्रास्टिक चेंज रूरल डेवलपमेंट्स, विलेज डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल इस माइक्रो फाइनेंस ने किया. इसलिए 1976 की जो ग्रामीण बैंक है उसको वर्ल्ड पीस जो रेपुटेड अवार्ड है, नोबेल पारितोषिक से मोहम्मद यूनुस को नॉमिनेट किया गया, नॉमिनेट और उनको सम्मानित भी किया. सर, इनके की फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, जैसे कि हमने बेनिफिट देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, बैकग्राउंड देखा. नाउ द फीचर्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस के जो सिंपली लेंड टू द पुअर, अ पुअर पीपल जो अवे उनको दूर रखा गया था लेंडिंग फैसिलिटी से, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था. माइक्रो फाइनेंस लेंड अ सच पीपल. तो लेंड टू द पुअर अ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. जो पुअर पीपल है वो प्रूव कीजिए BPL अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन्स के पीपल से, इन लोगों को इजी लोन अवेलेबल करने का काम हमारी माइक्रो फाइनेंस करती है. नो नीड ऑफ द कोलैटरल सिक्योरिटी. सबको कुछ सिक्योरिटीज रखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि देखो, कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं तो ही कमर्शियल बैंक आपको लोन देती है, बट माइक्रो फाइनेंस में ऐसे कोलैटरल किसी भी सिक्योरिटी को रखने की जरूरत नहीं है. प्रेफर सेविंग ओवर द बोरोविंग्स. यहाँ पे ज़्यादा सेविंग को क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है. यू सेव. लो अर्नर पीपल्स को, अनएम्प्लॉयड पीपल को महिला बचत गट में ज़्यादा सेविंग के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है. स्मॉल सेविंग से वो बड़ा अमाउंट क्रिएट करते हैं. स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स अवेलेबल करके देते हैं. और का जो इंटरेस्ट होता है ओनली कॉस्ट कवर करने का, जो भी खर्चा हो रहा है प्रोसेसिंग चार्जेस है उसी के लिए इंटरेस्ट रेट होता है. नो मैक्सिमम रेट ऑफ
इंटरेस्ट, ग्रुप अप्राइजल एंड गारंटी, यहाँ पे ग्रुप ही गारंटी देती है और ग्रुप का ही अप्राइजल होता है। टारगेट ग्रुप ऑफ द वुमेन, जो वुमेन्स अनएम्प्लॉयड थे, उनको फिनेंशियल असिस्टेंट की आवश्यकता थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस का फ़ायदा हुआ। इसके फीचर्स हमने एक बार, पुअर को लेंड करता है, कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, सेविंग को प्रेफर करती है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जो भी इंटरेस्ट है ओनली कॉस्ट कवरिंग इंटरेस्ट है, ग्रुप अप्राइजल्स एंड गारंटी एंड टारगेट्स वुमेन्स को इन्होंने क्या किया है, फोकसिंग किया है। कौन सी सर्विसेज देते हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बेनिफिट्स, after the benefits, a characteristic features of microfinance. Now the point is a service provided by the microfinance. Which services provided by the microfinance? First is a credit facility, loan facility, जहाँ से commercial banks जो स्मॉल अर्नर है, देन कम्स टू दी लो इनकम ग्रुप है, अनएम्प्लॉयड पीपल है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती थी। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड दी क्रेडिट फैसिलिटी, इट प्रोवाइड द सेविंग अकाउंट्स, इट प्रोवाइड द लोन टू द स्मॉल इन्वेस्टर, मनी ट्रांसफर, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, सो मेनी फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। सेम फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द माइक्रो फाइनेंस टू द विलेज पीपल एज वेल एज लो अर्नर पीपल। तो ये सब सर्विसेज हमारी माइक्रो फाइनेंस कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करती है। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, उसका रोल्स कुछ है क्या? तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि सक्षम कृषि सहयोग, जो सक्षम कृषि सहयोग करके एक इंस्टीट्यूशन है जो 1998 को फॉर्म हो गई है, ये बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड में कहा गया है कि जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम, लोन प्रोवाइड करने का काम ये माइक्रो फाइनेंस करती है। तो SKS ये एक इंडिया की 1998 की बेस्ट माइक्रो फाइनेंस है और फंक्शनिंग प्रॉपरली। SKS जो वर्क्स एज अ सिमिलर टू द फैशन द ग्रामीण बैंक, ये ग्रामीण बैंक की तरह काम करती है। पुलिंग ऑल द बोरोवर्स इन द ग्रुप में उनको बुलाया जाता है एंड प्रोवाइड द लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द नीडी पीपल्स, ग्रोथ और ग्रोन अप ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, द मेन टास्क एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सक्षम कृषि सहयोग, जो 1998 को जो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की, इट फंक्शनिंग लाइक अ ग्रामीण बैंक। ये इंडिया में बहुत सारे महिला बचत गट है, सो मेनी माइक्रो फाइनेंस आर देयर्स, दे आर फंक्शनिंग एंड दे आर ट्राई टू डेवलप द फिनेंस, प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट्स to the low earner as well as village peoples. The main aim of microfinance to assist, to support to low earner as well as unemployed peoples and be a part of the play a important role in economic development of nations. Dear, हमारे विलेज की डेवलपमेंट होती है, हमारे लो अर्नर पीपल्स और जिनके पास स्किल है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट और सपोर्ट किया जाए तो डेफिनेटली देश का विकास, देश की डेवलपमेंट एज वेल एज ग्रोथ 101% हो सकती है। इसी एम से हमारा माइक्रो फाइनेंस वर्क करता है। और ये था हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस, उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, benefit, features as well as the services which provided by the microfinance. The microfinance unit in India will cover in a current session. Thank you. Thanks a lot.